ہاتھوں میں جان نہیں کیا، زور لگا کے دبا۔ کہتے ہوئے ساس نے میرے حمل زدہ پیٹ پہ لات ماری تو میں درد سے تڑپتی زمین پہ بیٹھ گئی۔ تبھی ساس بولی، اللہ کرے تیری اولاد مر جائے، تجھے کیا لگتا ہے اولاد پیدا کر کے میرے بیٹے کو اپنی طرف کر لے گی؟ اور میں درد سے تڑپتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو میری اولاد مر چکی تھی۔ شوہر غصے سے مجھے گھور رہا تھا اور ساس رونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ جو ہی شوہر مجھے طلاق دینے لگا، میں نے آسمان کی طرف دیکھتے کہا، اللہ مجھے ابھی انصاف چاہیے۔ بس یہ کہنا تھا کہ میں جانتی تھی کہ اگر میں ذرا سا بھی کچھ بولتی تو ساس کے کانوں تک بات پہنچ جاتی اور پھر میری زندگی مزید جہنم بن جاتی۔ میری ساس کے طنز بھرے جملے میری روح کو چھلنی کر دیتے، مگر میں پھر بھی خاموش رہتی۔ کبھی کبھی رات کے سناٹے میں جب سب سو جاتے، میں رب سے دعا کرتی، یا اللہ مجھے ایک بیٹی سے نواز دینا تاکہ میری بھی عزت رہ جائے۔ میری امید بڑھتی جا رہی تھی مگر جسم کمزور ہو رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ شاید اللہ میری ساس کی زبان بند کر دے، شاید میرے ہاں بیٹا ہو جائے، شاید اس گھر میں مجھے کچھ عزت مل جائے۔ میں ہر رات بیٹھ کے اپنی ساس کی بھی خدمت کرتی کہ شاید اس کا دل نرم ہو جائے، مگر اس کا دل نرم ہونے کے بجائے پتھر جیسا سخت ہوتا چلا گیا۔ میں ہر رات اس امید پر اپنی ساس کی خدمت کرتی کہ شاید اس کا دل بدل جائے، شاید میری خدمت سے وہ مجھ پہ ترس کھا لے، مگر اس کا دل تو جیسے پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا۔ ایک رات جب میں کام سے فارغ ہو کے لیٹنے ہی والی تھی کہ ساس کے کمرے سے آواز آئی، آ جا ذرا میری ٹانگیں تو دبا دے۔ میں فوراً اٹھی، دل چاہا کہ تھوڑا آرام کر لوں، مگر ساس کے بلانے پہ انکار کا مطلب طوفان تھا، اس لیے میں خاموشی سے اس کے کمرے میں گئی۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی، کبھی میری ماں کو کوستی، کبھی میرے نصیب کو، مگر میں خاموش رہی۔ تو اگلے ہی لمحے اس نے اپنا پاؤں میری پیٹھ پہ پوری قوت سے مار دیا۔ میں نے اپنی چیخ دبانے کی کوشش کی، میرا جسم جیسے سن ہو گیا۔ پیٹ میں ایک عجیب سا درد اٹھا، ایسا درد جو روح کو کاٹ کے رکھ دیتا۔ تبھی مجھے کچھ ہوش نہ رہا، مگر جب مجھے ہوش آیا تو مجھے احساس ہوا کہ سب ختم ہو چکا تھا۔ میری کوکھ جو کچھ لمحے پہلے امید سے بھری تھی اب خالی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے بھی مجھے نفرت سے جھٹک دیا۔ تب میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا، وہ میرے سرہانے کھڑی تھی، مگر اس کے چہرے پر آنسوں کے باوجود کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ رو رہی تھی جیسے میرے ہاتھوں نے اس کے خوابوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ میں نے کمزور آواز میں اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی، اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ میری بات سنو، میں نے کچھ نہیں کیا، اماں نے، مگر اس نے میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی نفرت سے منہ موڑ لیا۔ بس کرو اب، تم مجھے میری ہی ماں کے خلاف بھڑکاؤ گی، وہ رو رہی ہیں اور تم آرام سے جھوٹ بول رہی ہو۔ میں نے بے بسی سے اس کے قدموں کی طرف دیکھا، میرا دل چاہا زمین مجھے نگل لے، میری روح کی ساری طاقت ختم ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا، وہ چپ چاپ دیوار کے پاس کھڑی تھی، چہرے پہ وہی سختی، بس آنکھوں کے کنارے پہ دکھ کا ایک ہلکا سا سایہ تھا، مگر وہ دکھ بھی خود کے نقصان کا تھا، میرے دکھ کا نہیں۔ تب میں نے پہلی بار دل سے بد دعا دی، ایسی بد دعا جو صبر کے ختم ہونے کے بعد دل سے نکلتی ہے، اور پھر میری اگین ایسی بد دعا جو صبر کے ختم ہونے کے بعد دل سے نکلتی ہے، اور پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میرا نام نرمین ہے اور میرا تعلق لاہور کے پرانے شہر سے تھا، جہاں میں اپنے اماں ابا اور 3 چھوٹی بہنوں کے ساتھ ایک کچے مکان میں رہتی تھی۔ میرے ابا کا کوئی روزگار تو نہیں تھا، لیکن وہ محنت مزدوری والے سبھی کام کر لیا کرتا تھا۔ کبھی وہ کسی کے ساتھ مل کے سامان اٹھا لیتا تو کبھی کسی کے گھر الیکٹرانک کی چیزیں ٹھیک کر دیا کرتا، اس لیے وہ گزارے لائق کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ ہی لیا کرتا۔ ابا مہینے کے اتنے پیسے کما لیتا جس سے ہمارا گزارا مشکل سے ہی ہو پاتا۔ اماں ابا دونوں تو پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اماں ہمیں پڑھانا چاہتی تھی۔ جب اماں کو ایک کے بعد ایک کر کے 4 بیٹیاں ہو گئیں تو محلے کے ساتھ ساتھ خاندان بھر کے لوگ بھی اماں کو باتیں کرنے لگے۔ اماں نے تو ان کی باتوں کو نظر انداز کر ہی دیا، مگر ابا کے جیسے دل میں وہ سب باتیں بیٹھ سی گئیں۔ ابا ہر دوسرے دن کسی نہ کسی بات کا غصہ اماں پہ نکال دیا کرتا اور اماں بیچاری چپ چاپ ابا کا غصہ برداشت کرتی رہتی۔ مجھے اماں کی تھکی ہوئی آنکھیں اور ابا کی بجھی ہوئی ہمت دیکھ کے رونا آتا، مگر میں نے پھر بھی خود کو مضبوط کر رکھا تھا اور اپنے آنسوؤں کو اندر ہی اندر پینا سیکھ لیا۔ میں سب بہنوں میں بڑی تھی، اس لیے میں اماں کے ساتھ صبح اٹھ کے سب کے لیے ناشتہ بناتی اور پھر پانی کے مٹکوں کو سر پہ رکھے محلے کی اس گلی میں پانی لینے چلی جاتی جہاں روز نلکے پہ عورتوں کی لڑائیاں چلتی تھیں، مگر میں خاموشی سے اپنی باری کا انتظار کرتی اور واپس آ کے گھر کے صحن میں پڑے پرانے تخت پہ بیٹھ کے اماں کے ساتھ روٹیاں پکانے لگتی۔ ابا ہر روز صبح نکلتا اور شام کو تھکا ہارا لوٹتا، وہ جتنا تھکا ہوتا اتنا ہی چڑچڑا بھی ہو جاتا، مگر میں سب سے بڑی تھی، اس لیے میں نے سیکھ لیا کہ کس وقت ابا سے کون سی بات کرنی تھی اور کس بات سے بچنا تھا۔ اماں تو کبھی کبھی آنکھوں سے آنسو بہا کے دل ہلکا کر لیتی، لیکن میں نے اپنے دل کی دیواروں پہ جیسے چپ کی اینٹیں چن رکھی تھی۔ اسی دوران ہمارے گھر کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے، مگر ایک دن ہماری خراب قسمت مزید خراب ہو گئی۔
जब एक दिन अब्बा का पैर मजदूरी के दौरान फिसल गया और अब्बा की टांग में शदीद चोट आ गई। अब्बा के पाँव की चोट शदीद थी, इसलिए डॉक्टर ने कह दिया कि अब्बा कम से कम 6 महीने कोई काम नहीं कर सकते। वो खबर तो अम्मा के लिए क़यामत से कम नहीं थी, मगर मैंने अम्मा के आंसू पूंछते हुए कहा कि अम्मा तो फिक्र न कर, मैं कुछ न कुछ कर ही लूँगी। हमारे घर के पास ही एक मलकों की कोठी थी जहाँ पर मुझे कोई न कोई काम तो मिल ही सकता था। जब मैंने अम्मा से इस बारे में बात की तो अम्मा ने मुझे मलकों की कोठी पर जाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि अब्बा उससे हक में नहीं था कि मैं गैरों के घर जाकर उनका काम करती। मुझसे में तो अब्बा पहले ही होते थे, मगर इसके बावजूद भी मैंने अब्बा को बताए बगैर उस कोठी की मालिकन को अपने हालात बता के उससे मदद मांगी और वहाँ पे काम पे लग गई। वहाँ पे काम तो कुछ ज़्यादा नहीं था, इसलिए मुझे महीने में 5 या 6 बार जाके उनके ढेरों कपड़े हाथ से धोने होते, जिसके मुझे महीने भर के 8,000 रुपये मिलने थे। और मेरे लिए तो जैसे वो 8,000 ही मेरा सारा ख़जाना था। मैं बहुत अरसा उन मलकों के घर काम करती रही और अब्बा से छुप कर घर के अखराजात चलाने में उनकी मदद करती रही। मुझे लगा था कि अब्बा को कभी मालूम नहीं होगा, मगर वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल और गलती थी। जब अब्बा को मोहल्ले के ही कुछ लोगों से मालूम हुआ कि उनकी सबसे बड़ी बेटी जो जवान हो गई थी वो लोगों के घरों में उनके कपड़े धो के कुछ पैसे कमा रही थी, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस बना था। मुझे तो लगा था कि अब्बा खुश होंगे कि उनकी बेटी को उनका एहसास था, मगर उन्होंने मुझ कुछ कहने से पहले ही अम्मा को भी अच्छी खासी सुना दी कि वो जवान बेटी को जानबूझ के मलकों की कोठी पे भेज रही है और उनको ब्याहने की उम्र में वो अपनी बेटियों से लोगों के घर के काम करवा रही है। अम्मा ने अब्बा को सफाइयाँ देने की बहुत कोशिश की, मगर अब्बा ने पहले कब अम्मा की बात सुनी जो अब सुन लेता। अब्बा तो अम्मा को कहने लगा कि जितनी तूने लड़कियाँ पैदा की हैं अब उनको ब्याह कर उनके घर का कर दे, क्योंकि मैं मज़ीद इनका बोझ नहीं उठा सकता। उस रोज़ अब्बा की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, जैसे कोई तूफान आ गया था। अम्मा ने हमेशा की तरह दुपट्टे से अपने आंसू पूंछे और चुपचाप चूल्हे की तरफ रुख मोड़ लिया, मगर मेरे दिल पे अब्बा के वो अल्फाज किसी छुरी की तरह चुभ गए। मैंने तो सोचा था कि अब्बा फ़ख्र से कहेगा कि मेरी बेटी को एहसास है, तभी तो वो मेरे बोझ को बांटने निकली है, मगर यहाँ तो जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर डाला था, जिसकी सज़ा के तौर पे अब्बा ने मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। मैं बेशक बहनों में सबसे बड़ी थी, मगर उस वक्त मेरी उम्र भी मुश्किल से 18 साल थी जब अब्बा ने मेरे हाथ पीले करने का फ़ैसला कर लिया। उस रात मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी और जिन आंसुओं को मैं सबसे छुपा के बैठी थी, उस रात मैं छत पर चारपाई पे लेटी बेआवाज़ रोती रही। मेरा दिल चाहा कि मैं सब कुछ छोड़ देती, मगर फिर मुझे अपनी बहनों के मासूम चेहरे मज़ीद परेशान करने लगे और मैं सोचने लगी कि अगर मैं कोई गलत कदम उठाती तो उसका खमियाजा मेरी मासूम बहनों को भुगतना पड़ता। मुझे अम्मा का झुर्रियों भरा चेहरा भी याद आया और सबसे बढ़ के मुझे अब्बा की वो तनकीद याद आई जो अम्मा पे कई सालों से बरसती आई थी कि उससे सिर्फ बेटियां ही पैदा की हैं। अगले ही दिन मेरे लिए रज़ा का रिश्ता आ गया। वह हमारे करीब के गांव में रहता था। उसकी भी तालीम कोई इतनी ख़ास नहीं थी, मगर उसका रोज़गार अच्छा था। वह अपने गांव में एक किराने की दुकान चलाता था और 2 वक्त की रोटी के पैसे कमा ही लेता था। इसलिए अब्बा ने कुछ भी सोचे समझे बिना ही हाँ कर दी, क्योंकि उस वक्त अब्बा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि वह मुझे जल्द अज जल्द घर से रुखसत कर देता। अगले ही दिन मेरे लिए रज़ा का रिश्ता आ गया। वो हमारे करीब के गांव में रहता था। उसकी भी तालीम कोई इतनी ख़ास नहीं थी, मगर उसका रोज़गार अच्छा था। वो अपने गांव में एक किराने की दुकान चलाता था और 2 वक्त की रोटी के पैसे कमा ही लेता था। इसलिए अब्बा ने कुछ भी सोचे समझे बिना ही हाँ कर दी, क्योंकि उस वक्त अब्बा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि वो मुझे जल्द अज जल्द घर से रुखसत कर देता, क्योंकि उससे लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जो लोग पहले अब्बा को इस बात पे ताने देते थे कि उसने तो बस बेटियों की ही लाइन लगा ली है, तो वही लोग ये ताने देने लगे कि खुद तो वो बीमार हो के घर पे बैठ गया और अब बेटियों की कमाई खा रहा था। रज़ा के घर वालों ने भी मुझे देखते ही पसंद कर लिया, क्योंकि मैं अपनी बहनों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी और उसके साथ ही मुझे घर के भी सारे काम आते थे। रज़ा अपनी 2 बहनों का इकलौता भाई था। उसकी अम्मा देसी औरत थी और उसके अब्बा का इंतकाल हो चुका था। रज़ा अकेला ही अपने घर को चला रहा था। मेरा और रज़ा का सादगी से निकाह हो गया और मैं जहेज़ के नाम पे 2 जोड़ों में रुखसत होकर उसके घर चली गई। निकाह के बाद जब मैं अपने 2 जोड़ों के साथ उसके घर गई तो मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अम्मा की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, जबकि अब्बा ने मेरी तरफ देखा भी नहीं था, बल्कि बस इतना कह के मुझे घर से रुखसत कर दिया कि अब से रज़ा ही तुम्हारा सब कुछ है। वो तुम्हें जिस हाल में भी रखे तुम बस उसके घर को आबाद रखना और हमें भूल जाना, क्योंकि अब हमारे घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है और तुम्हारे बाद हमें और भी 3 लड़कियों को ब्याहना है। और इस तरह से मेरे अपने ही बाप ने मुझे बोझ समझ के उतार फेंका। रज़ा का एक छोटा कच्चा मकान था। उसके घर में सिर्फ
सिर्फ वो और उसकी माँ रहती थी और कभी कभार उसकी बड़ी बहनें आ जाती थीं, जिनके आने से घर में रौनक हो जाती। रज़ा की माँ एक सख्त मिजाज मगर सीधी सादी औरत थी। अपनी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव देख चुकी थी कि अब मुझे उनके असरात के बदलने का ज़्यादा पता नहीं लगता था, न मुझे उनकी खुशी का एहसास होता और ना ही उनके दुख का। मुझे भी देखते ही उसने बस इतना कहा कि मेरी बहू बन के आई हो तो अब ये तुम्हारा काम है इज्जत रखना, अपने सर की भी और इस घर की भी। उसके लहजे से मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो बस अपने बेटे की दुल्हन को घर लाना चाहती थी। इसके अलावा उसे किसी बात से कोई गर्ज नहीं थी कि आने वाली के भी कुछ जज्बात थे और वो भी अपने सीने में दिल रखती थी। मगर फिर भी मैंने सर झुका के उसकी हर बात मानी और निकाह के 2 दिन बाद ही घर के कामों में लग गई। सुबह जल्दी उठना, बड़े से सहन में झाड़ू देना, पानी के मटके भरना और फिर नाश्ता बनाना, घर के सब काम मेरे ज़िम्मे थे। रज़ा जल्दी तैयार होकर काम पे चला जाता और अपनी दुकान की कमाई भी माँ के हाथ पे रख जाता। मुझे कभी मालूम ही ना हो सका कि वो कितना कमाता था, क्योंकि उसने तो कभी मुझे जेब खर्च तक के भी पैसे नहीं दिए थे। मगर मैं फिर भी उसके साथ खुश थी, क्योंकि उसके घर में मुझे अब्बा जैसे ताने नहीं सुनने पड़ते थे। बस इस घर का काम ज़्यादा था जो मुझ अकेली को करना पड़ता था, चाहे मेरी तबीयत इस बात की इजाज़त देती या ना। काम सारा मुझे अकेली को ही करना पड़ता। रज़ा ज़्यादा बातूनी तो नहीं था, लेकिन वो बदअखलाक भी नहीं था। वो जब शाम को थका हारा आता तो चुपचाप खाना खाता और फिर कभी कभार मेरे साथ बैठ के 1-2 बातें कर लेता। मेरे लिए वो सब बिल्कुल नया था। उसका नरम लहजा, उसकी मेहरबान नज़रें, गर्ज़ ये कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और इज़्ज़त से पेश आता। अब्बा ने तो कभी अम्मा को इतनी इज़्ज़त दी नहीं थी, इसलिए मेरे लिए वो एक नया एहसास था। मैं उसका साथ पा के हर दुख को भूल जाती। वो मेरा ख्याल रखता मगर अपनी अम्मा के सामने ज़्यादा जताता नहीं था। एक दिन रज़ा की अम्मा मुझे कहने लगी कि तुम्हें सिलाई आती है ना, तो मेरी बड़ी बेटी के बच्चों के कपड़े सिलाई कर दिया करो, इस तरह कुछ रुपए भी आ जाएंगे और तुम्हारा वक्त भी कट जाएगा। मैंने खुरम की अम्मा की ही पुरानी सिलाई मशीन निकाली और उस पर कपड़े सिलाई करने लगी, क्योंकि अम्मा ने मुझ पे हुनर सिखाया था ताकि ज़रूरत पड़ने पे काम आ सकता। मगर उन कपड़ों की सिलाई के पैसे भी मेरे हाथ में आने के बजाय रज़ा की अम्मा के हाथ में थे। मैंने कोई शिकवा न किया कि मेहनत मेरी थी और फल वो खुद लेके बैठ गई। तब अपनी सास के ही मशवरे पर मैंने मोहल्ले के कुछ लोगों के कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए, ताकि मैं अपने लिए कुछ कमा सकती, क्योंकि रज़ा ने मुझे कभी कोई पैसा दिया ही नहीं था। मगर मोहल्ले के घरों से मेरे पास सिर्फ कपड़े ही आते थे। कभी कोई पैसा नहीं आया, क्योंकि वो मेरी सास के हाथ में जाता। फिर अल्लाह ने मेरी गोद भर दी और शादी के 1.5 साल बाद मुझे जुड़वा बेटियां हुईं। जब मैंने नन्ही बच्चियों को गोद में लिया तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। रज़ा भी खुश था, मगर उसकी अम्मा ने मेरी बच्चियों को देखा तक ना और मायूस हो के कहने लगी कि बेटा पैदा करती तो मुबारकबाद देती, इन लड़कियों की भला मैं तुम्हें क्या मुबारक दूँ। उनके वो तंज भरे जुमले सुन के मेरा दिल कट के रह गया, क्योंकि मेरी सास को उन मासूम बच्चियों की खुशी ही न हुई, बल्कि उसको तो मुझसे पोते की उम्मीद थी। मीरब और आमिना मेरी गोद में आई तो मुझे लगा जैसे मेरे अंदर नई जिंदगी जाग उठी थी। उनकी नन्ही उंगलियां, उनकी सांसों की महक जैसे मेरे जख्मों पर मरहम रख रही थी। मैं उन्हें सीने से लगा के बेतहाशा रोई। रज़ा ने थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा के बच्चियों को देखा ज़रूर था, मगर वो खुशी जो मैं उसकी आंखों में देखना चाहती थी वो कहीं छुपी हुई थी। शायद वो खुद भी अपनी माँ की बातों से मुतासर हो चुका था, या शायद बेटियों की पैदाइश वाकई उसे इतनी खुशी न दे पाई थी जितनी शायद उसे बेटी की पैदाइश पे होती। रज़ा की अम्मा तो जैसे किसी मातम कदे से वापस आई थी। उसने तो वाबेला ही मचा दिया कि हाय हाय, 2-2 लड़कियां, ये लड़की क्या नसीब लेके आई है हमारे घर। मैंने बहुत कोशिश की कि वो बच्चियों को एक बार गोद में ले लेती, उनके गाल चूमती, मगर वो सिर्फ ये कहती रही कि ये लड़कियां तो बस अपने बाप के खर्चे बढ़ाने आई हैं, क्योंकि कमाई का तो कोई आसरा नहीं। उनसे मैंने चुपचाप मीरब और आमना को गोद में लिया और उनके लिए अपने ही कुछ पुराने कपड़ों से काट काट के कपड़े सीने लगी। रज़ा की अम्मा की नज़रों से छुप छुप के मैं उनके लिए दूध गर्म करती और रातों को जाग जाग कर अकेली ही दोनों को संभालने लगी। एक दिन रज़ा मुझे कहने लगा कि अम्मा चाहती है कि तुम सिलाई का काम छोड़ दो, क्योंकि तुम सारा दिन उन लड़कियों में लगी रहती हो, अब फिर घर के काम भी ठीक से नहीं हो पाते। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया। मैं ज़ब्त से उसके सामने बोल पड़ी कि मैं वही काम करती हूँ जो सब औरतें करती हैं, लेकिन सिलाई तो बस मैं अपने और बच्चियों के खर्च के लिए करती हूँ। मगर उस दिन रज़ा ने सख्त लहजे में मुझे 2 टोक कह दिया कि अम्मा कह रही हैं तो बस इतना ही काफ़ी है, बाकी तुम जानो और अम्मा जाने। वो तो कहकर पलट गया, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद रज़ा की ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं थी। तब मुझे लगने लगा कि मैं जैसे अब्बा के घर में बेबस थी, वैसे ही अपने शौहर के घर में भी थी। जैसे अब्बा के घर में अम्मा की मर्ज़ी नहीं चलती थी, वैसे ही रज़ा के घर में मेरी मर्ज़ी पर अपना कोई इख्तियार नहीं था। मगर मैं अपने शौहर के सामने बेबस नहीं होना चाहती थी। मैं अपने और अपनी बच्चियों के लिए आवाज़ उठाना चाहती थी। तब एक दिन मैंने रज़ा से पूछ ही लिया कि क्या वो बच्चियों की पैदाइश पे खुश नहीं था, क्योंकि उसने कभी उन्हें जी भर के देखा ही नहीं था।
اس نے مجھے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ مجھے تو تم سے بیٹے کی امید تھی، مگر میں ان بچیوں کی پیدائش پہ بھی خوش ہی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ وہ باتیں صرف میرا دل رکھنے کے لیے کر رہا تھا، کیونکہ اگر وہ خوش ہوتا تو مجھے وہ خوشی اس کے چہرے پر ڈھونڈنی نہ پڑتی۔ میں چپ چاپ سارا دن اپنی بچیوں کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ گھر کے بھی سارے کام کاج کرتی رہتی، تاکہ رضا کی اماں کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہوتی۔ وہ بھی چپ چاپ سارا دن مجھے کام کرتے ہوئے اور بچیوں کو سنبھالتے ہوئے دیکھتی۔ اس نے کبھی بھی اٹھ کر میرے ساتھ کام کرنے کی کوشش ہی نہ کی۔ جب میری بچیاں 4 سال کی ہو گئیں تو میں ایک بار پھر سے امید سے ہو گئی۔ جب رضا کی اماں کو معلوم ہوا کہ میں امید سے تھی تو اس نے مجھے صاف کہہ دیا کہ اب کی بار بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ میرا دل اس کی بات سن کے خون کے آنسو رونے لگا اور مجھے اپنے اماں کی یاد آنے لگی، کیونکہ میری اماں کو بھی یہی کچھ سننے کو ملا تھا جو میں سن رہی تھی، مگر میں اماں سے کوئی شکایت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میرے اپنے باپ نے گھر کے دروازے مجھ پہ بند کر دیے تھے۔ رضا نے مجھے حوصلہ تو دیا، مگر وہ بھی کہنے لگا کہ تم خواہ مخواہ پریشان کیوں ہوتی ہو، دیکھنا اب کی بار تو لڑکا ہی ہوگا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خدشات آ رہے تھے۔ تب میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ اگر اب کی بار بھی مجھے لڑکی ہی ہوئی تو کیا وہ اس کو قبول کر پائے گا؟ وہ میری بات سن کے کچھ لمحے خاموشی سے میرا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا کہ ایسی مایوسی کی باتیں مت کرو، لیکن اگر کوئی لڑکی ہو بھی گئی تو بھی میں اس کو قبول کر لوں گا، کیونکہ میرے پاس تو اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ میری آنکھوں میں دکھ سے آنسو آ گئے، مگر میں بے بس تھی۔ میں روز رات کو سوتے ہوئے صرف یہی دعا کرتی کہ اللہ مجھے وہی دے جو میرے لیے بہتر ہو، مگر میرے دل میں عجیب سا خوف بیٹھا تھا۔ رضا کی ماں کی باتیں، اس کی نظروں میں چھپی تلخی اور اپنے شوہر کے لفظوں میں چھپی بے بسی مجھے مسلسل اندر سے کاٹتی جا رہی تھی۔ ہر لمحہ مجھے فکر کھائے جا رہی تھی کہ اگر بیٹی ہوئی تو کیا ہوگا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب نرس نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک بار پھر سے ایک لڑکی کو جنم دیا تھا۔ میری آنکھیں خود بخود چھلک گئیں۔ میں جانتی تھی کہ میری قسمت میں ماں بننے کی جو خوشی تھی وہ بھی میرے اپنے شوہر اور اس کی ماں کے رویے کی نظر ہو کے ادھوری ہی رہ جائے گی۔ جب رضا ہاسپٹل آیا تو اس نے مجھے تسلی تو دی، مگر اس کے چہرے کی خاموشی مجھے بہت کچھ کہہ گئی۔ وہ مجھے دیکھ تو رہا تھا، مگر میری آنکھوں میں چھپی امید کو سہارا دینے کی طاقت شاید اس میں نہیں تھی۔ جب میں گھر واپس آئی تو رضا کی ماں کا رویہ میرے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ اس نے مجھے یہ کہہ کے جھڑک دیا کہ میں بھی اپنی ماں کی طرح صرف لڑکیاں پیدا کرنے والی عورت تھی۔ وہ بار بار کہتی کہ بیٹے ہی نسل بڑھاتے ہیں، جبکہ بیٹیاں تو صرف بوجھ ہوتی ہیں۔ اس کی باتیں میرے دل پہ ہتھوڑے کی طرح لگتی، مگر میں خاموش رہتی۔ میرے پاس چیخنے، رونے یا شکایت کرنے کا اختیار بھی نہیں تھا۔ میرے لیے زندگی اب ایک قید بن گئی تھی جس میں صرف میرا جسم ہی نہیں بلکہ میرے جذبات بھی قید ہو کے رہ گئے تھے۔ رضا دن بھر گھر سے باہر رہنے لگا، کبھی کام کے بہانے تو کبھی دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے بہانے۔ میں گھر میں اپنی بچیوں کے ساتھ اکیلی رہ جاتی۔ ان معصوموں کی ہر مسکراہٹ میرے لیے نئی امید بن جاتی، لیکن ایک طرف ان کے نانا کے گھر کے دروازے بند تھے تو دوسری طرف ان کی دادی کے دل کے دروازے بھی ان پہ بند ہو گئے۔ نیرب اور آمنہ کی پیدائش پہ تو پھر بھی میری نندوں نے آ کے مجھے مبارکباد دے ہی دی تھی، مگر زینب کی پیدائش پہ تو وہ جھوٹے منہ بھی مجھے مبارکباد دینے نہ آئی۔ میری ایک نند تو خود بھی 2 بچیوں کی ماں تھی، اس کے باوجود بھی نہ جانے کیوں ان سب کو میری بیٹیاں ہی بوجھ لگ رہی تھی۔ میرے اماں ابا بھی صرف میری پہلی 2 بیٹیوں کی پیدائش پہ آئے تھے۔ اس کے بعد ابا نے اماں کو مجھ سے ملنے سے بھی روک دیا، کیونکہ رضا کی اماں نے تو باتوں میں ان کو بھی کہہ دیا تھا کہ میرے آنے سے ان کا نصیب ہی پھوٹ گیا تھا۔ رضا کی دکان سے آنے والے پیسوں سے بہت مشکل سے اخراجات پورے ہونے لگے۔ تب اس کی ماں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر مجھے اپنی بیٹیاں اتنی ہی عزیز تھیں تو میں ان کا بھی خرچہ خود اٹھاتی۔ تب میں نے ایک بار پھر سے پرانی سلائی مشین سنبھالی اور دل میں شکر بھی کیا کہ مجھے رضا کی ماں نے خود ہی اجازت دے دی کہ میں اپنا خرچہ چلا سکتی۔ رضا تو ایک دم بالکل خاموش سا ہو گیا۔ وہ جیسا بھی تھا، مگر اب اس کے سر پہ 3 بچیوں کی ذمہ داری تو تھی ہی، اس لیے وہ پریشان رہنے لگا اور آئے روز بیمار ہو جاتا۔ اس کی بیماری دیکھ کے بھی اس کی ماں مجھے تانے دینے سے باز نہ آتی۔ رضا بیچارہ اداس ضرور تھا، مگر وہ بھی شاید جان چکا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا اس سب میں میرا اپنا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ ابھی زینب 2 سال کی ہی ہوئی جب میں ایک بار اور امید سے ہو گئی اور میری سانس یہ خبر سن کے اپنا سر تھام کے بیٹھ گئی۔ اس نے باقاعدہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے مجھے رب کے واسطے دینا شروع کر دیا اور کہنے لگی میں اس پر اور اس کے بیٹے پہ رحم کرتی اور ان کے گھر میں بیٹیوں کی لائنیں نہ لگاتی۔ تب تو اس کی ماں مجھے میری ہی ماں کے حوالے سے بھی تانے دینے لگی۔
कि सब ने मुझे रोका था कि मैं इस औरत के घर अपने बेटे का रिश्ता ना करूं जिसकी सिर्फ बेटियां ही हों, क्योंकि अगर मैं बेटियों वाले घर से बहू लाऊंगी तो वो मेरे घर में भी बेटियों की लाइन लगा देगी। मेरी सास ने तो मुझे ये तक कह दिया कि मैं उस लड़की को ज़ाया करवा देती जो मेरी कोख में पल रही थी। उसको लगता था कि इस बार भी मेरी लड़की ही थी, इसलिए वो मुझे कहने लगी कि मैं अपना हमल ही गिरा देती। मगर मुझ में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उस मासूम का कत्ल कर देती जो अभी तक दुनिया में आई भी नहीं थी। मेरी सास का रवैया तो मेरे साथ पहले ही तल्ख था, मगर मेरी उम्मीद की खबर सुन के जैसे उसे खुशी के बजाय दुख होने लगा कि मैं हर बार उसके बेटे से हमदर्दी बटोर लेती थी। उसको लगता था कि अगर रज़ा ने मुझे कभी कुछ कहा नहीं था तो वो मुझसे और मेरी बच्चियों से बहुत खुश था, तभी तो कभी मुझे अपनी माँ के सामने बुरा भला नहीं कहता था। लेकिन मैं हकीकत जानती थी कि अव्वल मैं तो रज़ा भी शायद अंदर ही अंदर दुखी था। ये सोच करके मैंने उसके लिए 3-3 बेटियों का बोझ पाल लिया था, और अब एक बार फिर शायद मेरी कोख में एक लड़की ही पल रही थी। मैं हर रोज़ अकेली ही घर के काम काज करती और साथ में अपनी बच्चियों को भी संभालती। अगर मेरी बच्चियां भूख से रो रही होती और मैं काम में मसरूफ़ होती तो भी कभी मेरी सास ने ये जहमत न की कि वो उन मासूमों को अपने सीने से लगाकर खामोश करवा देती, बल्कि उल्टा जब मैं रात को थक हार के आराम करने के लिए लेटती तो भी मेरी सास मुझे अपनी खिदमत में लगा देती, और मैं कभी उसके सर में तेल की मालिश करती और कभी उसकी टांगें दबाती। मगर उस संग दिल औरत का दिल ऐसा पत्थर था कि मेरी 1000 कोशिशों के बावजूद भी नरम न हुआ। जब मेरी नंदे भी आती तो वो भी मुझे ऐसे देखती जैसे मैं उनकी कोई मुजरिम थी। उनके लहजे में हमेशा तंज होता, बात बात पे ताना, और हर जुमले में ये एहसास कि जैसे मैंने उनके भाई की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। एक कहती कि अम्मा ठीक ही कहती हैं, भाभी को तो सिर्फ बेटियां ही पैदा करनी आती हैं। दूसरी हंसते हुए कहती कि बस अब दुआ करो इस बार बेटा हो जाए, वरना भाई तो तुमसे और भी तंग आ जाएगा। मैं उनके चेहरे देखती तो दिल चाहता ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, मगर मैं खामोश रहती। मेरी खामोशी ही मेरी ढाल थी। मैं जानती थी कि अगर मैं ज़रा सा भी कुछ बोलती तो सास के कानों तक बात पहुंच जाती और फिर मेरी ज़िंदगी मज़ीद जहन्नुम बन जाती। रज़ा उन दिनों ज़्यादातर घर से बाहर ही रहने लगा। कभी देर से आता और अगर कभी आ भी जाता तो बस चंद लफ्ज़ बोलता और सो जाता। उसके रवैये में वो नरमी, वो अपनायत कहीं खो गई थी जो शादी के शुरू के दिनों में थी। अब उसके लहजे में सर्द मोहरी थी, जैसे हम दोनों के दरमियान कोई दीवार खड़ी हो गई थी। ऊपर से मेरी सास के तंज भरे जुमले भी मेरी रूह को छलनी कर देते, मगर मैं फिर भी खामोश रहती। कभी कभी रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते मैं अपनी बेटियों के करीब लेट के उनके नन्हे हाथों को चूमती और रब से दुआ करती, या अल्लाह उनको वो इज़्ज़त देना जो उनकी माँ को न मिल सके, और अब की बार मुझे एक बेटे से नवाज देना ताकि मेरी भी इज्जत रह जाए। मेरी उम्मीद बढ़ती जा रही थी मगर जिस्म कमज़ोर हो रहा था। मैं चाहती थी कि शायद इस बार अल्लाह मेरी सास की ज़ुबान बंद कर दे, शायद इस बार बेटा हो जाए, शायद इस घर में मुझे और मेरी बेटियों को कुछ इज्जत मिल जाए। मैं हर रात बैठ के अपनी सास की भी खिदमत करती कि शायद उसका दिल नरम हो जाए, मगर उसका दिल नरम होने के बजाय मज़ीद सख्त हो गया। एक रात मुझे तेज़ दर्द उठा। जब मैंने सास को बताया तो वो कहने लगी कि अभी तो महीना पूरा भी नहीं हुआ, इसलिए बहाने मत बना। मैंने उसके सामने कुछ ना कहा मगर मेरा दर्द बढ़ता गया। आखिरकार मैंने खुद अपनी बच्चियों को सुला के एक चादर ओढ़ी और नीम शब में अकेली ही करीबी क्लिनिक चली गई। डॉक्टर मुझे कहने लगा कि मुझे फौरी आराम की ज़रूरत थी, वरना बच्चे को नुकसान हो सकता था। मैं वापस घर गई तो सास ने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। मैं दरवाजे पर बैठी रही, पेट में दर्द के मड़ोड़ उठते रहे और आंखों से आंसू बहते रहे। आखिरकार फजर के वक्त दरवाज़ा खुला। सास के चेहरे पर ज़रा भी फिक्र नहीं थी। वो मुझे देख के बस इतना बोली कि तुम्हारे जैसी कमज़ोर औरतों को बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। मैं टूट गई, जिस्म से नहीं रूह से। मगर जब मैंने अपनी बच्चों की मासूम सूरत देखी तो दिल ने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी तो तुम्हें उनके लिए जीना है। मैं हर रात इस उम्मीद में अपनी सास की खिदमत करती कि शायद उसका दिल बदल जाए, शायद मेरी खिदमत से वो मुझ पर तरस खा ले, मगर उसका दिल तो जैसे पत्थर से भी ज़्यादा सख्त था। एक रात जब मैं काम से फारिग होकर लेटने ही वाली थी कि सास के कमरे से आवाज़ आई, आ जा ज़रा मेरी टांगें तो दबा दे। मैं फ़ौरन उठी। दिल चाहा कि थोड़ा आराम कर लूँ, मगर सास के बुलाने पे इनकार का मतलब तूफ़ान था, इसलिए मैं खामोशी से उसके कमरे में गई। वो बिस्तर पे नीम दराज थी, चेहरे पर हमेशा की तरह कड़वाहट। मैं उसके पाँव के पास बैठ गई और आहिस्ता आहिस्ता टांगें दबाने लगी। ज़ोर से दबाओ, उसने गुर्राते हुए कहा। मैंने सिर झुकाया और हाथों में जोर डाला। लम्हे गुजरते रहे, वो मुसलसल बोले जा रही थी। मेरी माँ को कोसती, कभी मेरे नसीब को, कभी मेरी बच्चियों को मनहूस कहती। 3 बेटियां हो गई, ऊपर से एक और पेट में लिए बैठी है। मेरे बेटे की किस्मत ही फूटी कि तुझ जैसी औरत मिली। मगर मैं खामोश रही, आंसू अंदर ही अंदर निगल लिए। मगर जब वो हद से बढ़ गई तो मेरे हाथ एक पल के लिए रुक गए। शायद मेरी खामोशी उसको बर्दाश्त न हुई। उसने गुस्से से कहा, क्या हुआ, हाथ क्यों रोक लिए? मैंने कहा, दबाओ में। मैंने लरजते हुए हाथ दोबारा चलाए
अचानक उसने ज़ोर से अपना पाँव झटका और गुस्से में आके कहा, कमबख्त, तुझसे तो ज़ोर भी नहीं लगाया जाता। और अगले ही लम्हे उसने अपना पाँव मेरे पेट पे पूरी कुव्वत से मार दिया। मैंने अपनी चीख दबाने की कोशिश की, मेरा जिस्म जैसे सुन्न हो गया। पेट में एक अजीब सा दर्द उठा, ऐसा दर्द जो रूह को काट के रख देता। मैं चकरा के ज़मीन पे गिर गई, मगर वो सर्द लहजे में कहने लगी कि ड्रामा मत कर, मुझे पता है तुझे तवज्जो चाहिए, उठो जाके पानी ले आ। मैं उठने की कोशिश करती रही, मगर जिस्म साथ नहीं दे रहा था। मेरी सांस फूलने लगी, पसीना आने लगा और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। दर्द बढ़ता गया, यहाँ तक कि मेरी चीख गले में अटके रह गई। मैं खुद को घसीटते हुए अपने कमरे तक पहुंची और तभी मुझे कुछ होश न रहा। मगर जब मुझे होश आया तो एहसास हुआ कि सब खत्म हो चुका था। मेरी कोख जो कुछ लम्हे पहले उम्मीद से भरी थी अब खाली हो गई। मेरी सांस मेरे सरहाने खड़ी मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी और रज़ा वो मुझे गुस्से से देख रहा था, क्योंकि अब की बार मेरी कोख में एक बेटा था जिसकी जान मेरी सांस ने ले ली। और रज़ा को लगा जैसे वो सब कुछ मैंने जानबूझ के किया। मैंने रज़ा को समझाने की कोशिश की, मगर उसने भी मुझे नफरत से झटक दिया। तब मैंने अपनी सास की तरफ देखा, मेरे सरहाने खड़ी थी, मगर उसके चेहरे पर आंसुओं के बावजूद कोई पछतावा नहीं था। वो रो रही थी, मगर मैं जानती थी कि वो अपने किए पर नहीं बल्कि वो अपने पोते के मरने पर रो रही थी। और रज़ा, वो तो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई कातिला थी, जैसे मेरे हाथों ने उसके ख्वाबों का गला घोंट दिया। मैंने कमज़ोर आवाज़ में उससे बात करने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की कि रज़ा मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया बल्कि अम्मा ने। मगर उसने मेरी बात पूरी होने से पहले ही नफरत से मुँह मोड़ लिया। बस करो, अब तुम मेरी माँ के खिलाफ ही मुझे भड़काओगी। वो रो रही है और तुम आराम से झूठ बोल रही हो। मैंने बेबसी से उसके कदमों की तरफ देखा। मेरा दिल चाहा ज़मीन मुझे निगल ले, मेरी रूह की सारी ताकत ख़त्म हो गई थी। मैंने अपनी सास की तरफ देखा, वो चुपचाप दीवार के पास खड़ी थी, चेहरे पर वही सख्ती, बस आंखों के किनारों पर दुख का एक हल्का सा साया था। मगर वो दुख भी खुद के नुकसान का था, मेरे दुख का नहीं। तब मैंने पहली बार दिल से बद्दुआ दी, ऐसी बद्दुआ जो सब्र के ख़त्म होने के बाद दिल से निकलती है। ऐ रब, अगर मेरा दुख तेरी नज़र में बेमानी नहीं तो उस औरत को वही दर्द चखा जो मैंने सहा है, उसके घर में भी वही मातम हो जो मेरे दिल में है। उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि मेरी ज़ुबान से निकली वो बद्दुआ कितनी ताकतवर थी जिसने अर्श तक को हिला दिया। अगले ही दिन सास के फ़ोन पे एक के बाद एक कॉल आ रही थी। उसका चेहरा उतर गया, वो बार बार वज़ू करती, दुआ के लिए हाथ उठाती, मगर लबों से कोई लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। मैं अपने कमरे में ही थी जब अचानक मुझे एक चीख सुनाई दी। हाय मेरा नसीब! जब मैं भाग के बाहर आई तो देखा कि सास फर्श पे अपना सर थामे बैठी है। जब मैंने उससे पूछा क्या हुआ तो वो आंसुओं में डूबे कहने लगी, वो मेरी बेटी नायला, उसे उसके शौहर ने तलाक दे दी क्योंकि उसने भी तीसरी बेटी को जन्म दिया है। मेरी सास ने बहुत मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल की, मगर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। ये वही नायला थी जो हर मौके पे मेरा मजाक उड़ाती थी कि भाभी को तो सिर्फ बेटियां ही पैदा करनी आती हैं, और आज वो खुद उस अंजाम को पहुंच गई। मैं गुमसुम हो गई, मुझे यकीन ही ना आया कि क्या वाकई मेरी बद्दुआ इतनी जल्दी असर कर गई थी। दिल में एक लम्हे को खौफ सा भी पैदा हुआ, मगर फिर मैं सोचने लगी कि शायद इंसाफ यही था। मैं नहीं जानती थी कि हालात का रुख इतनी जल्दी बदल जाएगा। घर में एक मौत जैसी खामोशी छा गई थी। मेरी सास का गुरूर जैसे ज़मीन बोझ हो गया था। वो जो कल तक मेरी कोख को बद्दुआ देती थी अब खुद अपने नसीब को कोस रही थी, और मैं चुपचाप अपनी बच्चियों के साथ बैठ के सोचती कि अल्लाह के इंसाफ में कितनी ताख़ीर है, मगर जब वो फ़ैसला करता है तो पूरा निज़ाम हिला देता है। मेरी सास, मेरा शौहर, मेरी नंद बिल्कुल ऐसे खामोश हो गए जैसे कोई मर गया था। कुछ हफ्ते गुजरे, नायला दिन रात रोती रहती। मैं उसकी हालत देख के परेशान तो थी, मगर अब कोई कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन उस दिन घर में एक तूफ़ान आ गया जब एक दिन नायला ने खुदकुशी की कोशिश की। पूरा घर हिल गया। तब मैंने नायला को अपना हवाला देकर समझाया कि जिस तरह मुझे भी 3 बेटियों के होते हुए उसके घर वालों ने जलील किया था, यहाँ तक कि मेरा तो एक बच्चा कॉलेज में ही मार दिया गया, मगर मैं फिर भी अपनी बच्चियों की खातिर हिम्मत न हारी। मुझे तो अपने सगे माँ बाप ने भी कबूल करने से इनकार कर दिया था, जबकि उसकी तो माँ और भाई उसके साथ है, तो वो क्यों हिम्मत हार गई। उसे मुझे बोलने से किसी ने न रोका, बल्कि रज़ा ने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में भी निदामत थी। मेरी सास का गरूर नायला की हालत देख के मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। वो मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। एक रात वो मेरे कमरे में आई, तब मैं बच्चियों को सुला चुकी थी। मेरी सास के आंखों में आंसू थे। वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी तो मैं चौंक गई। ये वही औरत थी जिसने मेरे पेट पे लात मारी, जिसने मेरा बेटा मुझसे छीना, जिसने मेरे शौहर को मेरे खिलाफ किया। मैंने बस खामोशी से उसकी तरफ देखा और कहने लगी कि अम्मा, माफ़ी से वो नहीं लौट सकता जो मुझसे छिन गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो हाथ जोड़ के मुझसे कहने लगी कि मुझे अपनी सज़ा मिल गई, मेरी अपनी बेटी मेरे सामने बर्बाद हो गई, मैं रोज़ मर रही हूँ। मैंने नज़रें झुका ली तो वो भी खामोशी से चली गई।
उस रात जब सब सो गए तो मैं अपनी बच्चियों के पास बैठी और रब के हुजूर सजदे में गिरी कि या अल्लाह तुमने देर तो की मगर इंसाफ किया ज़रूर। नायला थी तो मुझसे बड़ी मगर बड़ेपन का मुजाहिरा भी मैंने ही किया, क्योंकि मैं जानती थी कि ठुकराए जाने का एहसास क्या होता है। इसलिए तब मैंने नायला को और मेरी बड़ी बेटियों ने नायला की बेटियों को सहारा दिया। मेरी बेटियां भी शायद मेरे जैसी बहादुर ही थी, क्योंकि उनको भी वैसे ही धत्कारा गया था जैसे कि मुझे मेरे अपने बाप ने धत्कारा था। तभी हालात की नज़ाकत के बाद वो और ज़्यादा मजबूत हो गई थी और नायला की बच्चियों को अपने साथ लगा के उनका दिल बहलाने में लगी रहती। तब पहली बार मेरी सास के चेहरे पर मेरी बच्चियों की वजह से खुशी आई और उस दिन उसने मेरी तीनों बच्चियों को अपने गले लगाया। तो मंजर ऐसा था कि मेरी आंखों से भी आंसू बह निकले। आज मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी सास की अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म ना हुआ होता तो शायद उसको कभी उसकी नाइंसाफ़ियों के बारे में भी अंदाज़ा ना होता जो वो मेरे साथ करती रही। आज मैं और नायला मिल के एक बड़ा सिलाई सेंटर चला रहे हैं, जिनमें हमारी बेटियाँ भी हमारी मदद करती हैं। हमारे घर के हालात बहुत बदल चुके हैं, क्योंकि मैंने रज़ा को यह यकीन दिलाया कि बेटियां किसी से कम नहीं होती, उनको बस एक मजबूत सहारे की ज़रूरत होती है। और फिर रज़ा वो मजबूत ज़्यादा बना और आज रज़ा को और मेरी सास को मेरी बेटियों पर फ़ख्र है। मेरी सास जो कभी हर एक के सामने मेरी बेटियों की वजह से किस्मत का रोना रोती थी, आज वो हर एक को फ़ख्र से कहती है कि मेरी बेटियां ही उनका फ़ख्र है। मेरे दिल में बस एक ख्वाहिश है कि काश कभी मेरे बाप ने भी ये समझा होता कि बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि वो तो बोझ बांटती हैं, तो आज शायद हालात उससे भी ज़्यादा अच्छे होते। लेकिन मैं आज भी अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे और मेरी बेटियों को वो इज़्ज़त दी जिसके बारे में मैंने कभी सिर्फ सोचा ही था।